دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جلالی جی اٹھنے کے بعد شاگرد اب اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، اور یسوع مسیح نے انہیں کہا تھا کہ تم اب میرے گواہ ہو۔ اب وہ ہمت پاتے ہیں، جرأت پاتے ہیں، اور دنیا میں جا کر یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں۔ آج کے انجیل مقدس میں بھی ہم نے یہی سنا ہے کہ یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے وقت انہیں کہا، انہیں مشن دیا کہ جا کر ساری دنیا میں ساری خلقت کو، سب قوموں کو، سب لوگوں کو انجیل کی باتیں بتاؤ، اور انہیں بتائیں، انہیں حکم کریں کہ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے اس پر عمل کریں۔ اور لکھا ہے کہ وہ روانہ ہو کر ہر جگہ جا کر انجیل کی منادی کرنے لگے۔ ہم رسولوں کے اعمال میں بھی دیکھتے ہیں کہ شاگرد لگاتار اب یسوع مسیح کی گواہی دے رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اب وہ کسی پریشانی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یسوع نے کہا ہے کہ دنیا کے آخر تک ہر روز میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع ان کے ساتھ ہے۔ اور آج ہم مقدس مرکز انجیل نویس کی عید مناتے ہیں۔ مقدس مرکز رسولوں کے اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدائی طور پر مقدس مرکز ان 70 لوگوں میں شامل ہے جن کو یسوع نے چنا، اور اس کے بعد یہ ان 4 انجیل نویسوں میں سے ہے جنہوں نے اناجیل لکھی۔ مقدس مرکز مقدس پولس اور برناباس کے ساتھ مشنری دوروں پر جاتے ہیں، اور اس کے بعد مقدس مرکز روم چلے جاتے ہیں اور مقدس پطرس کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ مقدس پطرس جب بھی وعظ دیا کرتے تھے، یسوع مسیح کے بارے لوگوں کو بتاتے تھے، اور مقدس مرکز انہیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے مقدس مرکز نے مقدس پطرس سے سنی ہوئی ساری باتیں اور پاک روح کی ہدایت سے انجیل مقدس لکھی۔ مقدس پطرس نے یہ دیکھا کہ مقدس مرکز ایمان میں بہت مضبوط ہیں اور بڑے وفادار ہیں، حلیم ہیں، فروتن ہیں، اور خدا کے فضل سے ان کا لب و لہجہ بہت اچھا ہے، فروتنی ہے ان میں، لوگوں میں میل ملاپ میں بہت اچھے ہیں۔ خدا نے ان کو فضل بخشا ہے، اور خدا نے انہیں فضل بخشا ہے کہ وہ سچائی کی باتیں بتائیں، کیونکہ انہوں نے سچی باتیں لکھی ہیں، سچائی کی باتیں بتاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ مقدس مرکز بنیادی طور پر یہودی تھے، اور اس لیے انہیں پرانے عہد نامے کی تعلیمات کا بھی سب پتہ تھا، اور مقدس پطرس سے اور یسوع مسیح سے جو باتیں سنی تھیں، اب وہ یسوع مسیح کی باتیں بھی بتاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ نبی جو دنیا میں آنے والا تھا وہ یسوع ہی ہے۔ اب اس ایمان کے ساتھ مقدس مرکز بھی لوگوں کو یسوع کی تعلیم، یسوع کے بارے بتاتے ہیں، اور مقدس پطرس پھر خوش ہو کر انہیں اپنا فرزند بھی، بیٹا بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں مصر میں، اسکندریہ میں بھیجتے ہیں تاکہ اسکندریہ میں جا کر وہ خدا کا کلام سنائیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس مرکز مصر میں جا کر، اسکندریہ میں جا کر یسوع کی منادی کرتے ہیں، تو یہ وہی مصر ہے جہاں پر یہ یہودی 430 سال تک غلام رہے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مقدس مرکز اب ان لوگوں کو جا کر یسوع کی تعلیم دیں گے جہاں پر ان کے آباء و اجداد بہت عرصہ غلام رہے، اور اپنے آقاؤں کو تعلیم دینا آسان نہیں ہوتا، اپنے آقاؤں کو، اپنے پر راج کرنے والوں کو۔ لیکن مقدس مرکز بڑی جرأت کے ساتھ جا کر اسکندریہ میں یعنی مصر میں یسوع کی منادی کرتے ہیں، اور بڑی جرأت کے ساتھ سب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یسوع نوشتوں کے مطابق اس دنیا میں پیدا ہوئے، نوشتوں کے مطابق یسوع مسیح نے دکھ اٹھائے،
नविश्तों के मुताबिक यीशु जी उठे हैं और यीशु मसीह हमारा खुदावंद है। बताते हैं यीशु मसीह अब हमारा बादशाह है। उस इलाके में, क्योंकि मिस्र है, वहाँ पर हमेशा बादशाहत रही। जब मुकद्दस मरकज़ लोगों को बताते कि यीशु बादशाह है, तो उनकी मुखालफत भी होनी शुरू हुई कि हमारा तो बादशाह ये है, और ये किस बादशाह के गीत गाते हैं, ये किस बादशाह की खबर देते हैं। मुकद्दस मरकज़ ने यहाँ पर कलीसिया कायम की सिकंदरिया में। इसके बाद मुकद्दस मरकज़ अफ्रीका के दूसरे ममालिक में भी, लिबिया में भी गए, वहाँ पर जाकर भी उन्होंने मुनादी की, और बिलाखिर इन्हीं की वजह से सिकंदरिया में एक बहुत मजबूत कलीसिया बन गई। बहुत मजबूत कलीसिया बनी, बेशुमार लोग यीशु के पैरोकार बने, बेशुमार लोग यीशु पर ईमान लाए, बहुत सारे लोगों ने यीशु के नाम पर बपतिस्मा पाया, और अब इन मसीहों की तादाद बढ़ने लगी। इस बढ़ती हुई तादाद को देखकर और इनके खुदा का कलाम सुनाने के अंदाज को देखकर तादाद बढ़ती जाती है, और दूसरी तरफ बादशाह और उनके सारे रुफ़का मुकद्दस मरकज़ के ख़िलाफ़ होते जाते हैं, और बिलाखिर मुकद्दस पतरस को गिरफ़्तार कर लेते हैं, पकड़ते हैं, और उन्हें मना करते हैं कि यीशु के बारे तालीम ना दो। लेकिन मुकद्दस मरकज़ जानते थे कि अब हमें दुनिया की कोई ताकत मसीह के प्यार से जुदा नहीं कर सकती। ना कोई तलवार, ना कोई हुकूमत, ना कोई और कैद खाने, कोई चीज़ हमें जुदा नहीं कर सकती। इसलिए मुकद्दस मरकज़ कहते हैं कि जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने सुना है, हम उसकी गवाही देते हैं, और यही गवाही देते रहेंगे। बिलाखिर मुकद्दस मरकज़ अपने इस मिशन को जारी रखते हैं, और बादशाह के हुक्म पर मुकद्दस मरकज़ को बहुत सज़ा दी जाती है, गिरफ़्तार करके उन पर बड़ा जुल्म किया जाता है। और फिर भी मुकद्दस पतरस यीशु मसीह की मुनादी करने से रुकते नहीं हैं, और आखिर में उन्हें रस्सियों से बांधकर तो सड़क पर, एक घोड़े की मदद से सड़क पर घसीटा जाता है, और सारा दिन उनको मुख्तलिफ जगहों पर घसीट कर ले जाया गया, ताकि इस तरह की उन्हें सज़ा दें, ऐसी इबरतनाक सज़ा कि वो दूसरे लोग भी जो यीशु का नाम लेते हैं, जो मुकद्दस मरकज़ के ज़रिए यीशु के पीछे आ गए हैं, वो सब के सब यीशु को छोड़ दें। लेकिन मुकद्दस मरकज़ इतनी अज़ियत, आप अंदाज़ा कर सके कि कोई शख्स उसको सड़क पर घसीटा जाए, उसको इतनी खराशें आएँ, इतनी रगड़ें आ जाएं, खून बहे, सर फट जाए, और वो फिर भी इस दुख में भी यही कहे कि यीशु ही मेरा बादशाह है, यीशु ही मेरा निजात दहिंदा है, अब हमें यीशु से कोई जुदा नहीं कर सकता। बिलाखिर यीशु मसीह मुकद्दस मरकज़ पर इस अज़ियत में ज़ाहिर होते हैं, और उन्हें बताते हैं कि तू मजबूत रहना, तो इसी काम के लिए बुलाया गया है, गवाही देते रहना। और मुकद्दस मरकज़ इसी तरह से ही दुख सहते सहते फिर जामे शहादत नोश फरमाते हैं, और इस दुनिया से यीशु की मुनादी करते करते रुखसत हो जाते हैं। अजीज़ों, ये है इब्तदाई कलीसिया का काम, ये है शागिर्दों का काम, ये है उन रसूलों का मिशन जिनको ये समझ आ गई थी कि अब हमारा जीना और हमारा मरना यीशु की गवाही देना है, और इसी के लिए ही हम पैदा हुए हैं। अजीज़ों, आज हम सब जहाँ जहाँ भी हैं, हम भी आप देख सकते हैं कि यीशु ने शागिर्दों को बताया था कि लोग मेरे नाम की वजह से, मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करेंगे, लोग तुम्हें सताएंगे। और मुकद्दस मत्ती के इंजील में यीशु बताते हैं कि लोग तुम्हें अदालतों में ले जाएंगे, कैद खाने में डालेंगे, घसीटेंगे, मारेंगे, लेकिन फिक्र ना करना,
मेरा बाप का रूह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें उस घड़ी क्या कहना है, क्या करना है। अजीज़ शागिर्दों को ये पता था ज़िंदगी एक ही बार मिली है, एक ही बार, और हम इस ज़िंदगी को बेहतर एक किसी आला मकसद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अगर जान चली भी जाए, जान देने वाला भी वही है, जान लेने वाला भी वही है। और यीशु ने कहा था यही वक्त तुम्हारे लिए शहादत का वक्त होगा। शहादत यही दोगे कि तुम मसीह के हो, तुम मसीह की तालीमात पर अमल करते हो। मसीह की तालीमात पर अमल करते करते, शहादत देते देते इस दुनिया में अपना सफ़र पूरा कर लोगे। अज़ीज़ आए, आज हम देखें कि शायद कई दफ़ा हम भी सच्चाई की खातर कई दफ़ा दुख सहते हैं, परेशानियों का मुकाबला करते हैं, तासुब का निशाना बन जाते हैं, क्योंकि हम मसीही हैं। किसी ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, कोई किसी को बुरा भला नहीं कहा, लेकिन इस वजह से कि आप मसीही हैं, हम मसीह की तालीमात पर अमल करते हैं, हम नेक काम करते हैं, अच्छाई करते हैं, किसी को दुख नहीं देते, कोई रिश्वत नहीं लेते, किसी को सताते नहीं हैं, और इस वजह से ही कई दफ़ा नेक लोग सताए जाते हैं, उनको तंग किया जाता है। अज़ीज़ों, आए हम आज खुदा से ख़ास दुआ करें, फ़ज़ल मांगें, खुदा आपको बहुत फ़ज़ल अता करे, ताकि आज सबसे पहले हम अपने अपने ईमान का अंदाज़ा करें कि मैं अपने ईमान में मजबूत हूँ और ज़िंदा हूँ। मेरा मिशन यीशु की तालीमात को आगे पहुँचाना है। मेरा मिशन यीशु से चिमटे रहना है। मेरा मिशन खुदा की बातों पर अमल करना है। मेरा मिशन और कुछ नहीं है। अज़ीज़ों, जब आप ये बातें खुद भी उन पर अमल करते हैं, अपने बच्चों को भी यही बात बताते हैं कि एक ही सच्चाई है, और सच्चाई ये है कि यीशु हमारा निजात दहिंदा है। यीशु निजात दहिंदा है जिसने हमें ये कहा है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। जब हम ये ईमान रखते हैं कि वही हमारा राह है, वही हक है, वही ज़िंदगी है, अज़ीज़ों, फिर हमारी अपनी ज़िंदगी बदल जाती है। हम सोचते हैं कि हमारी गवाही क्या है, और गवाही के लिए सबसे पहली बात हमारा अपना नेक चाल चलन है, हमारी अपनी बातचीत है, अपना लबो लहजा है, अपनी ज़ुबान है कि हमारी ज़ुबान कैसी है, हम अपने हम इंसानों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, हम किस तरह से अपनी भी इज़्ज़त करते हैं कि मैं भी काबिल एहतराम हूँ, मैं बपतिस्मा याफ्ता हूँ, मैं भी काबिल एहतराम हूँ, दूसरा शख्स भी काबिल एहतराम है, हम उसकी भी इज़्ज़त करते हैं, अपनी भी इज़्ज़त करते हैं। उसे भी खुदा ने पैदा किया है, मुझे भी खुदा ने पैदा किया है। इस वजह से मुश्किलात हो सकती हैं। अज़ीज़ों, जब आप ये सारी बातें आप अपने बच्चों को भी बताते हैं, ख़ुद भी उस पर अमल करते हैं, आप और आपका घराना पूरा बचा रहेगा। मुक़द्दस मरकस ने जब सिकंदरिया में ये तालीम दी तो कई घराने सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, कई घराने फिर बपतिस्मा लेते रहे और यीशु के गले में शामिल होते रहे। जो आज हम दुआ भी करेंगे बेशुमार मिशनरियों के लिए जो दुनिया के बेशुमार खितों में यीशु की बताई हुई बातें बताते हैं, लोगों को नजात की तरफ लाते हैं, लोगों को तौबा की तरफ लाते हैं, लोगों को दावत देते हैं कि वो खुदाई वाहिद पर ईमान रखें। आए हम अपने ख़ानदान के साथ इस मिशन को कई तरीक़ों से जारी रख सकते हैं। हम अपने ही घर में आज उन मिशनरियों के लिए जिनको आप जानते हैं, उन फादर सिस्टर्स जो बाहर के मुल्कों से शायद आए, उन्होंने हमारे इलाक़ों में एक बड़ा काम किया। आज हम अगर वो खुदा में सो गए हैं, आज हम उनके लिए भी दुआ कर सकते हैं, क्या खुदा तूने ये मिशनरी हमारे मुल्कों में भेजे, उन्होंने हमें यीशु का पैगाम दिया। आज हम पापा आज़म के लिए दुआ कर सकते हैं कि हम अपने पापा आज़म के लिए दुआ करेंगे जो इस मिशन को जारी रखे हुए हैं। आज हम अपने तमाम अजीज़ों और रिश्तेदारों को जो जहाँ कहीं भी हैं
جو اس مشن کو جاری رکھیں، ان کے لیے دعا کریں گے۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو کثرت سے برکت دے تاکہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، اور مقدس مرکز نے جو باتیں اپنی انجیل کے ذریعے سے بھی ہمیں بتائی ہیں، ہم اس انجیل کو بھی پڑھتے رہیں اور ان پر بھی عمل کر کے خود خوش رہیں، دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنیں، اور اپنے گھرانے کو خدا کی طرف ہمیشہ لے کے جاتے رہیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔